Hi everyone, this is Janesh Koda here and welcome back to our video of accounts. So we are solving the chapter financial statement 2, which is chapter number 9, and this is from 11th standard accounts CBSE board class 11th. Okay, we are on sum number 2 and page number 412 students. So yeah, so let's get started. I'm going to teach you the entire sum properly. We're going to discuss the sum and then solve the sum as well. Students, a few things before starting with the sum. The first thing is, if you see that link I have in the description, I'm going to put the photo of the entire sum. So if you cannot see the sum, a little blur, you can then go through the entire photo. Secondly, students, we are conducting some online as well as offline lectures, live lectures for students. So for CBSE 11th standard, those are paid lectures. Basically, those are tuitions. Again, in the description, I have given my mobile number, contact number. You can contact us if you're looking out for some any online tuitions as well. And yeah, and we both sides is there, but I'll keep telling you in the video. So stay tuned till the end. Yeah, so this is on sum number 2, which says, and we are on page number, what page number is this? This is page number 412. And let's start 412. It says, prepare a trading and profit loss account of Messrs Green Club Limited for the year ended 31st March 2017 from the following figures taken from his trial balance. So what is given to us is trial balance, and what do we have to make? Achha, trial balance and adjustments. What do we have to make? Trading account, profit account, and balance sheet. Okay, guys. So let's start. We're going to discuss the sum. Opening stock. Opening stock goes in trading. Profit purchase trading. Purchase. Achha, this is return. बेसिकली दिस इज सेल्स रिटर्न स्टूडेंट्स. ये क्या है? सेल्स रिटर्न है. एंड आपको पता है सेल्स रिटर्न हमेशा क्या होगा स्टूडेंट्स? लेस फ्रॉम सेल्स. आपको याद रखना है सेल्स रिटर्न क्या होगा? लेस फ्रॉम सेल्स. और सेल्स को यहाँ पे टिक कर रहे हो स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है आपको टिक करना. नेक्स्ट आफ्टर दैट वी हैव दिस इज प्रॉफिट एंड लॉस. व्हाट इज दिस? postage and telegram, profit and loss. Salaries, profit and loss. Wages, trading. And then we have rent rates, and this is rent and rates, profit and loss. Again, packing and transport, profit loss. General reserve, profit loss. Insurance, profit loss. Debtors. So debtors is current asset. Okay, cash in hand is current asset. Cash at bank is current asset. Machinery is fixed asset. Lighting and heating goes in profit and loss. Lighting and heating. Discount goes in profit and loss. Bad debts goes in profit and loss. Investment will go in asset. Okay, students. Now moving on the credit side, sales goes in trading. Purchase return. So students, purchase return, you write over there less from purchase, and make sure that you do the tick marking to the purchase so that you know that you have to leave one line over there. Creditors, current asset. Bills payable, current asset. Discount, profit and loss. Provision for bad debts, obviously it goes in profit and loss. You can write over there formula. So you have to write the entire formula of the bad debts. Interest received, profit and loss, and capital will go in liability. Chalo, great. This is great, students. Amazing. Let's move forward now. First one, it says depreciation on machinery. तो जो बच्चे लोग टिक करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग को टिक करना. आप टिक नहीं करोगे तो आपको याद नहीं आएगा कि आपको लाइन छोड़नी है. डेप्रिसिएशन का तो इफेक्ट क्या होता है? लेस फ्रॉम असेट. लेस फ्रॉम असेट मतलब वही आपको मशीनरी से लेस करना है. ठीक है. एंड देन पीएनएल डेबिट साइड, देन इट गोज टू पीएनएल डेबिट साइड. परफेक्ट. नेक्स्ट आफ्टर दैट वी हैव फर्दर बैड डेब्ट्स है 1500, डिस्काउंट ऑन डेटर्स है 5% एंड प्रोविजन फॉर डेटर्स है 6%. तो स्टूडेंट इन सब में कॉमन क्या है? सब में ही लेस होगा. लेस फ्रॉम डेटर्स होगा. आप डेटर्स को टिक कर लो. ओके, आप क्या कर लो? डेटर्स को टिक कर लो. डेटर्स को कितना टिक करेंगे बच्चे लोग? 3 टिक करेंगे. 3 एडजस्टमेंट है. 1 2 3. 3 टिक. 3 टिक मतलब कितना? 5 लाइन. क्या याद रखना है? 1 में 1 लाइन, 2 में 3 लाइन और 3 का 5. 1 का 1, 2 का 3, 3 का 5. मस्त है ना एकदम बच्चे लोग? 1 का 1, 2 का 3, 3 का 5. एक एडजस्टमेंट में 1 लाइन छोड़ेंगे, 2 एडजस्टमेंट में 3 लाइन छोड़ेंगे और 3 एडजस्टमेंट में 5 लाइन छोड़ेंगे. तो लेस फ्रॉम डेटर्स करेंगे और सब में ही क्या होगा? बाद में क्या होगा? एड टू बैड डेब्ट्स होगा. एड टू बैड डेब्ट्स करना. लेस फ्रॉम डेटर्स एड टू बैड डेब्ट्स. ये किसमें होगा? बैड डेब्ट्स में होगा. और बच्चे लोग डिस्काउंट वाले में कहा जाएगा? डिस्काउंट वाला होगा वो लेस फ्रॉम डेटर्स करके पीएनएल डेबिट में डाल देंगे. ठीक है, मैं आपको सम के अंदर बताऊंगा. डू नॉट वरी एट ऑल. आफ्टर दैट नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट. स्टूडेंट्स, इंटरेस्ट वर्ड हमेशा ऐड होता है. आप मुझे बताओ स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई आउटस्टैंडिंग लड़का या लड़की में इंटरेस्ट हो तो बच्चे लोग ऑब्वियसली आपका इंटरेस्ट क्या होगा? ऐड होगा ना. तो स्टूडेंट्स, आउटस्टैंडिंग वर्ड भी हमेशा ऐड होता है और इंटरेस्ट वर्ड में भी हमेशा क्या होता है? ऐड होता है. तो ऐड करेंगे, इन्वेस्टमेंट में वो अमाउंट ऐड कर देंगे. एंड इट्स एन इनकम. इनकम तो पीएनएल क्रेडिट साइड. क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स. चलो इन्वेस्टमेंट को भी टिक करेंगे स्टूडेंट्स. आप लोगों को याद रखना है, मेरे पास अगेन एक पेपर है स्टूडेंट्स और उसमें मैं सब लिख के रख रहा हूँ.
किसमें किस एडजस्टमेंट में, डेटर्स में है और मशीनरी में। अभी तक तो फिलहाल डेटर्स और मशीनरी है, बाकी परचेज और सेल्स में है, ठीक है, और इन्वेस्टमेंट में भी है, डेटर्स मशीनरी इन्वेस्टमेंट, ठीक है, ओके। और फिर बाद में यहाँ पे कई डिस्काउंट वर्ड दिया है, डिस्काउंट वर्ड, ओके, डिस्काउंट में भी एडजस्टमेंट है, इधर भी स्टूडेंट आप टिक कर लो अगर आपको करना हो तो, डिस्काउंट में भी एडजस्टमेंट है। क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है स्टूडेंट, क्लोजिंग स्टॉक आपको हर बार याद रखना है, हर एक सब में आने वाला कंपलसरी है, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड और फिर बैलेंस शीट असेट साइड, फिक्स सही है, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड बैलेंस शीट असेट साइड। तो यहाँ पर हमारा कंप्लीटली पूरा का पूरा सब डिस्कस हो चुका है प्रॉपर्ली। नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड टू सॉल्विंग द सम, ओके, चलो, ओके। सो स्टूडेंट्स यू कैन सी मैंने यहाँ पे सम नंबर भी लिख लिया ऑन द टॉप, सम नंबर 2 पेज नंबर 412, फाइनेंशियल स्टेटमेंट 2 है, क्लास 11 है, इन द बुक्स ऑफ मैसेज ग्रीन क्लब लिमिटेड है, ट्रेडिंग अकाउंट लिख दिया है, प्रॉफिट लॉस भी पूरा लिख दिया है, मार्च 2017 है, एंड बैलेंस शीट भी लिख लिया है। स्टूडेंट्स थोड़ी बहुत चीजें व्हिच यू कैन सी ऑन द स्क्रीन विल रिमेन ऑलवेज सेम, टू ओपनिंग स्टॉक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, कैपिटल, ये सारे वर्ड्स आपको लिखने के बाद सम की शुरुआत करनी है। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन, ओपनिंग स्टॉक दिया है 35,000, सो आई एम गोइंग टू राइट ओवर हियर 35,000, परचेज दिया 1,25,000, 1,25,000। अब है रिटर्न इनवर्ड, दैट इज एज गुड एज सेल्स रिटर्न विच इज 25,000। तो स्टूडेंट उसको हम माइनस करेंगे, वो सेल्स में से लेस होने वाला है, लेस फ्रॉम सेल्स। पोस्टेज एंड टेलीग्राम, सो राइट ओवर हियर टू पोस्टेज एंड टेलीग्राम, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है। अच्छा, कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा स्टूडेंट्स तो हम क्या करेंगे, उसको राइट साइड लिखेंगे, अमाउंट कॉलम में लिख रहा हूं मैं, इसलिए मैंने अलग अलग नाम दे दिया, डिटेल्स एंड अमाउंट। आपको एग्जाम में आपको जैसे कॉलेज की मैम बताते हैं आप वैसे लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप अमाउंट अमाउंट लिखेंगे तो भी चलेगा। सैलरी, सैलरीज का अमाउंट है 12,300, 12,300, ओके, 12,300। नेक्स्ट आफ्टर दैट वी हैव वेजेस 3,000 रुपीज, ओके, टू वेजेस 3,000 रुपीज, उसमें भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है। रेंट एंड रेट्स 1,000, टू रेंट एंड रेट्स 1,000। नेक्स्ट पैकिंग एंड ट्रांसपोर्ट है, टू पैकिंग एंड ट्रांसपोर्ट, और जिसका अमाउंट है पैकिंग एंड ट्रांसपोर्ट 500 रुपीज। आफ्टर दैट जनरल एक्सपेंस है 400, टू जनरल एक्सपेंस 400, ओके ग्रेट। आफ्टर दैट इंश्योरेंस वर्ड दिया हुआ है, टू इंश्योरेंस, टू इंश्योरेंस, और अमाउंट है 4,000 रुपीज, चलो ठीक है, इंश्योरेंस 4,000। यहाँ पे जनरल की स्पेलिंग थोड़ी बराबर कर लेते हैं, ओके। आफ्टर दैट इंश्योरेंस के बाद स्टूडेंट्स डेटर्स दिया 50,000, चलो मैं राइट साइड असेट साइड लिख रहा हूँ, डेटर्स यहाँ पे थोड़ा सा नीचे लिख रहा हूँ, डेटर्स, और डेटर्स में स्टूडेंट्स 3 एडजस्टमेंट है, 5 लाइन छोड़नी है, 50,000 रुपीज है। चलो आफ्टर दैट नेक्स्ट कैश इन हैंड, कैश एट बैंक में 5 लाइन, 1 2 3 4 5 लाइन छोड़ने के बाद लिख रहा हूँ कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, जिसका अमाउंट दिया हुआ है हमें 20 एंड 40, 20,000, 40,000, ओके। नेक्स्ट व्हाट वी हैव मशीनरी 20,000, मशीनरी को मैं एकदम टॉप पे लिखूंगा बिकॉज इट इज अ फिक्स असेट, हमेशा ऊपर फिक्स असेट से स्टार्ट करना है, जिसमें एडजस्टमेंट भी है और अमाउंट है हमारा 20,000 रुपीज। नेक्स्ट आफ्टर दैट लाइटिंग एंड हीटिंग पीएनएल में आएगा स्टूडेंट्स, पीएनएल डेबिट साइड, चलो टू लाइटिंग एंड हीटिंग, ओके, जो इन चीज डेबिट में दी है उसे डेबिट में लिखेंगे, जो क्रेडिट में दी है उसे क्रेडिट में लिखेंगे यूजुअली, ठीक है, याद रखना आपको 5,000 रुपीज। नेक्स्ट डिस्काउंट है 3,500, अब डिस्काउंट में एडजस्टमेंट स्टूडेंट्स याद रखना, क्योंकि डेटर्स को डिस्काउंट दिया है हमने एडजस्टमेंट के अंदर, सो डिस्काउंट में आई एम पुटिंग इट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। बैड डेब्ट्स, तो बच्चे लोग बैड डेब्ट्स का पूरा फॉर्मूला है, तो मेरे पास ऊपर के वाले सम में फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, तो प्लीज इफ यू डोंट माइंड मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट करने वाला हूँ, ओके, डोंट बी जेलस, आप लोग को पूरा अच्छे से लिखना होगा ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके। क्या कॉपी पेस्ट किया है, टू बैड डेब्ट्स, ऐड फॉर द बैड डेब्ट्स, ऐड न्यू आरडीडी एंड लेस ओल्ड आरडीडी, फर्स्ट एंड लास्ट ट्रायल बैलेंस, बीच के दो एडजस्टमेंट, ये आपको याद रखना अच्छे से, ठीक है, ओके। आफ्टर दैट इसके बाद लास्ट इन्वेस्टमेंट दिया, इन्वेस्टमेंट को असेट साइड लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स, जिसमें एडजस्टमेंट है हमारा इन्वेस्टमेंट, और अमाउंट आएगा इन्वेस्टमेंट का यहाँ पर 23,100 रुपीज, जिसमें एडजस्टमेंट है 23,100, ओके परफेक्ट। नाउ मूविंग ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस, सेल्स दिया हुआ है सबसे पहले, और अमाउंट दिया हुआ हमें 2.5 लाख रुपया, 2,50,000। टेल मी स्टूडेंट्स व्हाट इज 2.5 लाख माइनस 25,000,
which comes to 2,25,000 over here. Perfect. Moving forward, next is purchase return is 6,000. Okay, so 6,000 लिख रहा हूँ यहाँ पे और 6,000 है students. What is 1,25,000 minus 6,000 will come to 1,19,000. Okay, after that, next 1,19,000 के बाद students, next what we have, क्रेडिटर्स दिया 10,000 जिसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है. आपको याद रखना है कैपिटल में हमेशा आपको 10 लाइन छोड़ देनी है, याद रखकर. भले कुछ हो या नहीं हो, छोड़ देना उतना लाइन. 10,000 लिखा हमने क्रेडिटर्स. नेक्स्ट आफ्टर दैट क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल लिखेंगे. बिल्स पेबल, और बिल्स पेबल का अमाउंट है स्टूडेंट्स, बिल्स पेबल का अमाउंट है 20,000 रुपीज. Perfect. What we have next? We have discount. Now on the credit side, I'm going to write over here buy discount, but with no adjustment. So I'm going to put it on the right hand side. Amazing. Perfect. 1,000 लिखेंगे. Provision for bad debts. Provision for bad debts क्या होता है? ये RDD हमारा bad debts के फॉर्मूला में जाएगा. अच्छा, मैंने bad debts का तो अमाउंट लिखा ही नहीं है, पूरा फॉर्मूला कॉपी कर लिया, बट bad debts का अमाउंट था 3,500 रुपीज था. अब स्टूडेंट्स ये फर्स्ट एंड लास्ट ट्रायल बैलेंस में मिलेगा. तो ये जो हमें आरडीडी मिला है ट्रायल बैलेंस में, हमेशा ओल्ड आरडीडी होगा, याद रखना है. ट्रायल बैलेंस में जो होता है वो ओल्ड आरडीडी होता है. अमाउंट है 4,500 रुपीज. इसको हम माइनस ब्रैकेट में डालेंगे बिकॉज आपको ब्रैकेट डालना है वहां पे ताकि माइनस होगा स्टूडेंट्स. नेक्स्ट आफ्टर दैट आरडीडी हो गया हमारा 4,500 हो चुका है स्टूडेंट्स. नेक्स्ट आफ्टर दैट इंटरेस्ट रिसीव 5,400 बाय इंटरेस्ट रिसीव. ये इंटरेस्ट किस चीज का इंटरेस्ट हमें कुछ मेंशन नहीं किया स्टूडेंट्स, तो इसको हम इन्वेस्टमेंट वाले इंटरेस्ट से कंपेयर नहीं कर रहा हूं मैं फिलहाल कुछ भी. एंड लास्ट कैपिटल दिया 75,000 रुपीज. चलो, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ 75,000 रुपीज, और यहाँ पे हमारा पूरा का पूरा ट्रायल बैलेंस हो गया कंप्लीट ऑन द स्क्रीन. नाउ वी आर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द एडजस्टमेंट. और स्टूडेंट्स हमें क्या पता है, एडजस्टमेंट के हमेशा दो इफेक्ट होते हैं, याद रखना है आपको. स्टार्टिंग विद द फर्स्ट एडजस्टमेंट, डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीनरी 5%. परफेक्ट. चलो लेस करेंगे, डेप्रिसिएशन लिखेंगे बच्चे लोग, और एट द रेट 5% पर एनम लिखेंगे. 20,000 का 10% होता है, एक जीरो कम कर दो, तो 20,000 में से एक जीरो कम गया 2,000. 2,000 का आधा 1,000. ठीक है, 20,000 माइनस 1,000 क्या होगा, 19,000. इसका सेकंड इफेक्ट क्या आएगा, लेस फ्रॉम असेट पीएनएल डेबिट साइड, लेस फ्रॉम असेट पीएनएल डेबिट साइड टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी. अमाउंट आएगा 1,000 रुपीज. ठीक है, हमने मशीनरी पे डेप्रिसिएशन डाल दिया स्टूडेंट्स, कंप्लीट कर दिया जो एडजस्टमेंट यहाँ पर. अगर आपको लग रहा है if I'm going too fast स्टूडेंट्स, तो आप वीडियो को पॉज भी तो कर सकते हो, क्या ही प्रॉब्लम है. ठीक है, फर्दर बेड डेब्ट्स दिया 1,500 रुपया. चलो क्या याद रखना है, लेस फ्रॉम डेटर्स एड टू बेड डेब्ट्स. तो चलो लेस फ्रॉम डेटर्स लिखेंगे, लेस फर्दर बेड डेब्ट्स. ये जो हमें एडजस्टमेंट में दिया हमेशा फर्दर बेड डेब्ट्स होता है, याद रखना आपको. कितना अमाउंट है, 1,500 रुपया. स्टूडेंट्स मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि हमारा नुकसान सिर्फ और सिर्फ हमारा डेटर्स ही कर सकते हैं, जो हमें जिनसे अपेक्षा है, जिनसे हमें कोई एक्सपेक्टेशन है, दे कैन ओनली हर्ट अस. तो मेरे डेटर से मुझे एक्सपेक्टेशन थी 50,000 आएगा, लेकिन नहीं, 1,500 रुपया डूब गया स्टूडेंट्स. तो कितना बच गया, 48,500 बचा है. लेस फ्रॉम डेटर्स एड टू बेड डेब्ट्स. अब मैं बेड डेब्ट्स में डालूंगा इसको बेड डेब्ट्स के फॉर्मूला में 1,500 रुपया. ओके, चलो तो लेस फ्रॉम डेटर्स एड टू बेड डेब्ट्स हो गया. अब कंटिन्यू करेंगे, लिखा है डिस्काउंट ऑन डेटर्स, लेकिन नहीं, डिस्काउंट ऑन डेटर्स बाद में लिखेंगे, पहले हमें बेड डेब्ट्स कंप्लीट करना है पूरा. मैं आरडीडी प्रोविजन वाला डालने वाला हूं लेस. अब ये आरडीडी हमें कहाँ दिया हुआ है स्टूडेंट्स, हमें ट्रायल एडजस्टमेंट में दिया हुआ है. तो कितना है आरडीडी का अमाउंट स्टूडेंट्स, आरडीडी का अमाउंट है हमारा प्रोविजन ऑन डेटर्स है 6%. तो पहले मैं प्रोविजन वाला डालूंगा 6%. तो 48,500 का 6% कितना, तो मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ पेपर पे. 48,500 का अगर 1% 485 हो गया, तो इंटू 6 करेंगे 33 कैरी, 6 8 48, तो 5 कैरी 551 ना, 3 तो 6 4 24, 2910. तो स्टूडेंट्स अमाउंट आ रहा है 2910. मैं यहाँ लिख रहा हूँ 2910. इसको यहाँ से क्या करेंगे, फिर से लेस करेंगे. अब 48,500 को माइनस करेंगे 2910 से. ठीक है, 0 10 में से 1 गया तो 9, 4 14 में से 9 गया तो 5, 7 से 2 गया तो 5, 45,590. कितना आएगा स्टूडेंट्स, 45,590 आएगा. ओके, तो स्टूडेंट्स ये हमें जो मिला अमाउंट स्टूडेंट्स, वो क्या मिला हमें, 2910 हमें क्या मिला है स्टूडेंट्स, वो हमें मिला है हमारा आरडीडी का अमाउंट 6% लेस फ्रॉम डेटर्स एड टू बेड डेब्ट्स. 2910 लिख रहा हूँ पे, 2910 बराबर 2910. चलो ये बेड डेब्ट्स वाला पूरा पार्ट कंप्लीट हो चुका है, तो मैं इसको टोटल करूंगा. टोटल कितना लग रहा है, 3 और 4 5,000, 7,910 माइनस करना है हमें, 4,500 माइनस करना है ना. उसमें से क्या माइनस करना है, 4,500 माइनस करना है. 4,500 माइनस करेंगे तो 0 1, 9 में से 5 गया तो 4, 7 4 3 1 3410, 3,410.
तो स्टूडेंट्स 3410 हमारा क्या अमाउंट आया स्टूडेंट्स, वो हमारा पूरा का बेड डेब्ट्स का अमाउंट आया 3410। चलो ठीक है, आगे बढ़ेंगे अब नेक्स्ट एडजस्टमेंट की ओर। नेक्स्ट एडजस्टमेंट में क्या लिखा था स्टूडेंट्स, डिस्काउंट ऑन डेटर्स, तो लेस करेंगे, लेस डिस्काउंट ऑन डेटर्स एट द रेट, कितना परसेंट दिया क्वेश्चन में चेक करो, 5% दिया था, एट द रेट 5%। ठीक है, अब क्या बचा, 45,590 बचा है, 40, ओ माय गॉड दिस इज डिफिकल्ट, डिफिकल्ट होते जा रहा है अमाउंट, 45,000 और फिर क्या है 590, 5.9 इंटू कितना परसेंट, 5%, ओके, 5 4 जा 45, ठीक है, 25, 9 टू कैरी 25, 7 टू कैरी 20 टू 22, 2279.5, तो मैं 2280 कर रहा हूँ, कितना कर रहा हूँ, 2280, 2280 स्टूडेंट्स, ये जो 2280 स्टूडेंट्स वो हमारा क्या अमाउंट आया स्टूडेंट्स, हमारा 2280, वो जो 2280 अमाउंट आया स्टूडेंट्स वो हमारा डिस्काउंट ऑन डेटर्स है, इसको यहाँ से लेस करूंगा, अब मैं अमाउंट कर रहा हूँ 45,590, 45,590 और माइनस करूंगा 2280, 9 में से गया 1, 5 से हो गया 3, 5 से हो गया 3, 43,310 स्टूडेंट्स अमाउंट है 43,310। इसका सेकंड 43,310 स्टूडेंट्स, इसका सेकंड इफेक्ट डालना नहीं भूलना हमें, लेस फ्रॉम डेटर्स और पीएनएल डेबिट साइड, देखो यहाँ पे डिस्काउंट ऑलरेडी दिया था, मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, ऐड और डिस्काउंट हमने क्या किया, अलाउ किया, डिस्काउंट अलाउड, कितना डिस्काउंट अलाउ किया था हमने, 2280, जो लास्ट था वो हमारा 2280 था, उसको यहाँ पे डाल देंगे 3000, तो ये 5780, ठीक है, प्लस कर दिया, 3 और 2 5000 हो गया, 5 और 2 7 हो गया और 80 हो गया, परफेक्ट स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हमने पूरा का पूरा एडजस्टमेंट नंबर 2, कौन सा एडजस्टमेंट, पूरा का पूरा स्टूडेंट एडजस्टमेंट नंबर 2 कंप्लीट कर दिया है, जिसमें 3 एडजस्टमेंट थे एक के अंदर ही। वेरी गुड जैनिश, मूविंग फॉरवर्ड, वेजेस प्रीपेड, ओ माय गॉड, वेजेस में एडजस्टमेंट है, मैंने एक लाइन छोड़ी है कि नहीं छोड़ी है, थैंक गॉड वेजेस में कुछ नहीं था। चलो ठीक है, तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, लेस करेंगे, लेस प्रीपेड, प्रीपेड हमेशा आउटस्टैंडिंग हमेशा ऐड होता है, एडवांस हमेशा लेस होता है, तो एडवांस मतलब प्रीपेड होता है स्टूडेंट्स, उसे लेस करेंगे, कितना अमाउंट लेस करना है हमें, 1000 रुपीज दिया हुआ है, तो हमने क्या किया, एडवांस में खर्चा किया, 3000 माइनस 1000 विल कम टू 2000, और एडवांस में खर्चा करना स्टूडेंट्स, एडवांस में खर्चा करना क्या होगा, एडवांस में खर्चा करना, इसको हम थोड़ा सा काम करते हैं साइड में, इस वीडियो को मैं साइड में लेना भूल गया था इस सम के अंदर, कोई बात नहीं, इसको ऊपर डाल देते हैं यहाँ पे, भाई कहाँ चला गया वीडियो, वो वीडियो कहाँ चला गया, जस्ट 1 सेकेंड। ओके स्टूडेंट्स, सो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सेकेंड इफेक्ट डालने वाले हैं, प्रीपेड इंश्योरेंस इज एन असेट, प्रीपेड वेजेस, प्रीपेड वेजेस मतलब हमने एडवांस में खर्चा कर दिया स्टूडेंट्स, और एडवांस में खर्चा करना इज ऑलवेज एन असेट फॉर अस, ओके, तो ये हमारा असेट हो चुका है। मूविंग फॉरवर्ड स्टूडेंट्स, तो हमने क्या कंप्लीट कर दिया, अब हमने कितने एडजस्टमेंट कंप्लीट कर दिए, हमने एडजस्टमेंट नंबर थर्ड भी कंप्लीट कर दिया है, लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट एडजस्टमेंट नाउ। फोर्थ एडजस्टमेंट बोला इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 5% है, चलो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 5% है, ओके जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, ओके, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है, और कितना अमाउंट दिया स्टूडेंट्स, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इज 5% गिवन टू अस, इन्वेस्टमेंट है यहाँ पर, तो अच्छा, तो स्टूडेंट्स मैंने क्या बताया था आपको, इंटरेस्ट हमेशा ऐड होगा, आउटस्टैंडिंग वर्ड भी ऐड होता है और इंटरेस्ट वर्ड भी ऐड होता है हमेशा, इन एट द रेट 5%, और क्या करेंगे इसका, 5% का स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, अमाउंट, चलो मुझे कैलकुलेट करना होगा, 2310, इसका 10% होगा, डिवाइड बाय मैं 2 करूंगा, और डिवाइड बाय क्या होगा, डिवाइड बाय मैं 2 कर रहा हूँ, 2310 का आधा कितना होगा 1, फिर से 1 5 2, तो मतलब 1 हो गया, फिर खाली 2 बचा तो वापस 1 हो गया, 1 1 बचा, मैंने 5 कर दिया, 1 बचा 0 बचा, 1155, तो स्टूडेंट्स अप्रोक्सीमेटली अमाउंट 1155 आ रहा है स्टूडेंट्स मेरा। ओके, तो 1155 स्टूडेंट, तो इसको ऐड करेंगे, 23 अगर ऐड हो गया तो 24,000 हो जाएगा, और 255 ओके, 24,255, इसका सेकंड फैक्ट डालेंगे स्टूडेंट, बिकॉज ये बहुत अच्छी बात है, इनकम है हमारे लिए, तो बाय इंटरेस्ट सेम रिसिप्ट लिख रहा हूँ, और या इंटरेस्ट रिसिप्ट की जगह मैं लिख रहा हूँ इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट वर्ड यूज कर सकता हूँ, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, और जो अमाउंट है हमारे पास वो है 1155, तो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या पार्ट हमने कंप्लीट कर दिया, एडजस्टमेंट 4 कंप्लीट कर दिया, मूविंग फॉर द लास्ट एडजस्टमेंट नाउ, और लास्ट एडजस्टमेंट हमारा क्लोजिंग स्टॉक स्टूडेंट जो 10,000 है, तो क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड 10,000, और यहाँ पे भी आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक और अमाउंट आएगा 10,000 रुपीज, परफेक्ट। चलो
तो यहाँ पर सारे के सारे एडजस्टमेंट कंप्लीट कर चुके हैं एंड वी डोंट हैव एनी हिडन एडजस्टमेंट ओवर हियर, सो व्हाट वी हैव टू डू, द नेक्स्ट स्टेप इज वी हैव टू कंप्लीट द सम। तो कंप्लीट एज इन हमें टैली करना होगा सम को। स्टूडेंट्स इस बार मुझे लग रहा है हमारा क्रेडिट साइड हैवी है, तो 2,25,000 का 2,35,000 इतना तो मैं ओरली भी कर सकता हूँ स्टूडेंट्स। चलो 2,35,000 आ रहा है, और 2,35,000 तो यहाँ पे भी सेम जो हैवी है उसको दोनों बाजू लिख लेंगे, 2,35,000 यहाँ भी लिख देंगे। आई हैव अ पेन विद मी स्टूडेंट्स, मैं भी माइनस करना लाऊं। 2 लाख कितना अमाउंट है, 2,35,000, तो 2,35,000 और डेबिट में कितना दिया है, लेट्स सी 2,19,000, तो टू अगर एक बार 1,19,000 तो 1,20,000 समझो, 1,50,000 1,56,000 माइनस करने वाला हूँ, फिर भी एक बार चेक करो 35 45 55 और 56, परफेक्ट। चलो 0,005, तो स्टूडेंट्स 9 आएगा, और यहाँ पे 2 12 में से 5 गया तो स्टूडेंट्स 7 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर अमाउंट मेरा कुछ 79,000 रुपीज आ रहा है, 79,000 एग्जैक्ट, परफेक्ट, वेरी गुड स्टूडेंट्स। इसको मैं क्या नाम दूंगा, टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन। ओके, और यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट होगा स्टूडेंट्स, तो नीचे कहाँ पे जाएगा, यहाँ पर बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। हमेशा आपको एक लाइन छोड़नी है, याद रखना स्टूडेंट, 79,000। अगेन स्टूडेंट इस बार मुझे लग रहा है प्रॉफिट एंड लॉस का भी डेबिट ही हैवी है, तो लेट मी जस्ट डू द नीडफुल यहाँ से थोड़े बहुत। ओके, तो यहाँ पर स्टूडेंट 79 है, फिर 80 है, मैं लिख लेता हूँ 80 तो हो ही रहा है, 85,400 है, और ये कितना है, 11,155 तो 55 तो आएगा 86,555, तो स्टूडेंट अमाउंट आ रहा है 86,555 अमाउंट आ रहा है हमारा। ओके, 86,555, तो ये 86,555 को यहाँ भी सेम लिखना लो, 86,555। चलो 86,555 में से स्टूडेंट्स क्या करेंगे अब हम, ओ माय गॉड डेबिट कितना बड़ा है, डेबिट को सारा कैलकुलेट करना होगा हमें। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, ये 12,900 13,900 है इतना तो। चलो, और ये कितना है, 900 है, 4,000 9,900, ये है 9,900 है। ओके नो प्रॉब्लम, 5780 है, और ये 4410 है, 441009, 18 18 और 11 कितना होता है, 29, 2 कैरी, ये कितना आएगा, 5 और 5 10, 19 19 और 4 23, 2 कैरी, 33,990 टोटल आ रहा है स्टूडेंट्स, 33,990। तो चलो मैं क्या करूंगा, जो मेरा 86,555 उसमें माइनस करूंगा 33,990, तो पहले 5 आएगा, फिर 15 में से 9 गया तो 6 4 14 में से 9 गया तो 5 5 में से 3 गया तो 2 8 में से 3 गया तो 5 52,000 स्टूडेंट्स अमाउंट आ रहा है, तकरीबन 52,565, 52,565, और स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू, तो स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, एक बार देख लिया, इसमें कुछ और लिख रहा हूँ, टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, यहाँ से हम कहाँ जाएंगे, कैपिटल अकाउंट में जाने वाले, सो मैं वही लिख रहा हूँ, परफेक्ट। तो स्टूडेंट्स अब क्या करूंगा, यहाँ पर कैपिटल में ऐड करने वाला मैं अमाउंट को ऐड करेंगे, ऐड नेट प्रॉफिट, और कितना है इस बार प्रॉफिट हमारा, 52,565 है ना, एक बार यहाँ पे फिर भी क्रॉस चेक कर सकता हूँ, 52,565, यस 52,565, 52,565, परफेक्ट स्टूडेंट्स। अब एक आखिरी पड़ाव पे पहुंच चुके हैं स्टूडेंट्स, को टोटल करके लास्ट डिजिट तो 565, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ये 7 हो रहा है, और लास्ट में 1,27,565, इसको प्लस करेंगे, इसको ओरली कर सकते हैं, 30 ऐड करना है सिर्फ, 127 37 तो 157,000, और पीछे है 565। ओके स्टूडेंट्स, अब असेट को कैलकुलेट करेंगे, तो असेट को कैलकुलेट करने वाला हूं मैं, लेट्स स्टार्ट 24 34 44, तो ये 43,000 हो गया, 43,255, 40,255 हो गया बराबर। अब ये कर रहा हूँ 43 और 20 कितना होता है, ये तो पूरा 60 है, मतलब 1,00,000 1,03,310, 1,03,310, और ये कितना है, 11,000 है, सिर्फ और सिर्फ 11 लिख रहा हूँ यहाँ पर। चलो 5 हो गया, 6 हो गया, 5 हो गया, 565 तो आ रहा है लास्ट में, यस, ये हो गया हमारा, 7 आ रहा है, ओ यस, 1,57,000, परफेक्ट स्टूडेंट्स, 1,57,656 आ रहा है, 1,57,656, तो स्टूडेंट्स हमारा आंसर एकदम परफेक्ट आ गया है। मैंने जैसे आपको पहले भी बताया स्टूडेंट्स, मैं आप लोग को फिर से बता दूंगा, यू कैन लुक आउट फॉर दिस पर्टिकुलर सम का फोटो इन द डिस्क्रिप्शन, लिंक में डाला हुआ है,
ऑनलाइन ऑफलाइन ट्यूशंस भी हमारे चालू है सीबीएसई के फुल फ्लेज में. सो इफ यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट यू कैन ऑफ कोर्स लेट अस नो स्टूडेंट्स. बहुत ही धमाल, बहुत ही सुपर, एकदम अच्छा पढ़ाएंगे. जाते जाते स्टूडेंट्स कमेंट सेक्शन में कुछ प्लीज लिख के जाइए. व्हाट हाउ डिड यू फाइंड द एंटायर सम. सब्सक्राइब टू आवर चैनल, लाइक द वीडियो, शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड डू व्हाटएवर यू वांट टू डू स्टूडेंट्स. बट पढ़ते रहना. थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स. इट वाज नाइस हैविंग ऑल ऑफ यू. बाय बाय, टेक केयर.